Hello, welcome back to my YouTube channel. This is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome to Aryan Tutorials once again. So, uh, this is your part two for the transformation series where I'm going to give you the rules and some sample question as to how you have to give your answer. Chaliye, so let's get started. So the next rule is कि जब भी कोई sentence ought से बनाने आएगा. So for a positive sentence, for an affirmative sentence, you have to use to along with ought. And for a negative sentence, you have to use the structure not to. ठीक है? So ought to convey करता है कि it's like obligatory, it's compulsory कि ये तुम्हें करना ही पड़ेगा. You have to do this. And ought not to, it's like you may or you may not do it. That is what it conveys. So accordingly, इसका आंसर क्या होगा? You have to submit your assignment by Monday. So the answer will be you ought to submit your assignment by Monday. Full stop. You may not participate in the event. So you can write you ought not to participate in the event. ठीक है? You ought not to participate in the event. Full stop. Now कुछ exceptional cases होते हैं जहां पे इस टाइप के सेंटेंस में मे बी वो लोग आपको लिख के दे सकता है change to negative. तब in that case आप क्या करेंगे? You should respect your elders. So इसका negative version हो जाएगा you ought not to disrespect your elders. ठीक है? You should respect your elders मतलब आपको अपने elders को disrespect नहीं करना चाहिए. So you ought not to disrespect. Respect का उल्टा हो जाएगा, antonym use होगा disrespect your elders. That is an exceptional case. चलिए, let's go ahead. Structure number 12. Now sentences which comes with so that in it and that transforms into to and vice versa. So in that case, if a question comes like he is so old that he cannot walk further, so iska transformed version hoga he is too old to walk further. ठीक है? So that will transform into to. He is too old to walk further. In the similar manner, he was too shy to confess his feelings. He was so shy that he could not confess his feelings. Full stop. Now अब आपको लग रहा होगा कि ये could not क्यों हो गया and why it can't be cannot. So इसके लिए याद रखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन में टेंस जो दिया है उसके हिसाब से हम लोग लगाएंगे cannot या could not. So अगर क्वेश्चन में रहता is then we would have used cannot and अगर रहेगा was then we will use could not. So if the question had been he is too shy to confess his feelings, then it would have been he is so shy that he cannot confess his feelings. But he was too shy, past tense hai, was too shy to confess his feelings. He was so shy that he could not confess his feelings. ठीक है? I hope this is clear. चलिए, moving to the next structure. Structure with besides. Now, besides के साथ there is a disease with the students to use also. Please do not use also with besides. It is incorrect. आप AI में भी डालेंगे तो AI भी आपको besides के साथ also बना के दे देता है and then you ask the AI that I think we don't use also with besides, तो वो आपको फिर correct करके देता है. Yes, thank you for correcting me. So do not use also with besides. It will go incorrect. So besides का मतलब होता है
अदर देन दिस, इसके अलावा, ठीक है। तो उसके साथ उसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं बिसाइड्स के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन आउटस्टैंडिंग स्पीकर एज वेल एज एन एक्सीलेंट राइटर, सो यू हैव टू आंसर इट एज बिसाइड्स। आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा कंटिन्यूअस फॉर्म में। सो जनरली बिसाइड्स इज है, तो इज किसके फॉर्म में आता है? बीई के फॉर्म में। तो बीई का कंटिन्यूअस फॉर्म V4 क्या होगा? इट विल बी बीइंग, ठीक है। सो बिसाइड्स बीइंग एन आउटस्टैंडिंग speaker, you have to use comma to join besides wale sentences. Besides being an outstanding speaker, take the subject, he is an excellent writer. This is how you have to make your sentence, ठीक है। Besides being an outstanding speaker, comma, he is an excellent writer. चलिए, moving to the next structure. Sentences with not only. नाउ नॉट ओनली के साथ हम लोग बट ऑल्सो का यूज करते हैं सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, बट रिमेंबर दैट वी हैव टू प्लेस अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, एंड दैट हेल्पिंग वर्ब कैन बी इज, डिड और डज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्या सब्जेक्ट है एंड क्या टेंस है। जहां पे हम लोग इज और डज का इस्तेमाल जनरली प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं एंड डिड का इस्तेमाल पास्ट के लिए करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। Besides buying a laptop, he bought a desktop. Bought means past tense है, तो इसीलिए आप did का इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर में। तो क्या बनेगा? Your answer will be not only did he buy. प्लीज इसको याद रखिएगा कि जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू का फॉर्म यूज करते हैं, डू यानी चाहे डू को यूज करे, चाहे डस को यूज करे या चाहे डिड को यूज करे, इसके साथ जो हमारा मेन वर्ब आता है वो हमेशा अपने बेस फॉर्म यानी कि V1 बेस फॉर्म पे ही रहता है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे लोग बोलते हैं सर आई डिडंट न्यू दैट, दैट इज इनकरेक्ट, आई डिडंट नो दैट, ठीक है। डिड के साथ हमेशा डिड हो, डू हो या डज हो, उसके साथ हमारा मेन वर्ब हमेशा उसके प्रेजेंट बेस फॉर्म में ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, प्लीज याद रखिएगा। सो नॉट ओनली डिड ही बाय, ना कि बॉट, ठीक है। नॉट ओनली डिड ही बाय अ लैपटॉप, but also a desktop, ठीक है, but also a desktop. I hope this is clear. चलिए, moving to the next structure. Now whenever you see the word probable in your question, आपका आंसर हमेशा इस फ्रेज से स्टार्ट होगा, in all probability, ठीक है। whenever you see the word probable, your answer has to start with the phrase in all probability. So for example, देखिए यहां पे है, it is probable that he will win the race. So in all probability, comma, he will win the race, ठीक है। in all probability he will win the race, okay. You have to insert comma as well. In all probability he will win the race. Now sentences with none. जब भी आपको none से बनाने देगा या बोलेगा कि you have to begin with none, none के साथ तुरंत लगेगा but, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल, only a wealthy man could afford such an extravagance, and you have to begin with none. So none but a, copy paste the entire thing, none but a wealthy man could afford such an extravagance.
ओनली अ फूल वुड बिलीव यू, नन बट अ फूल वुड बिलीव यू। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा इसको, नन के साथ बट लगाना है आपको। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। Whenever it is like owing to, what is the meaning of owing to? Owing to means because of this, इसके वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, she succeeded because of her hard work, so owing के साथ to आना ही चाहिए। owing to her hard work, comma, she succeeded। owing to के साथ भी आपको कॉमा का इस्तेमाल करना है सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, owing to her hard work, comma, she succeeded। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। This is the most common one. Whenever you have to begin your sentences with having, right? So, having के साथ हमेशा जो verb का थर्ड फॉर्म होता है, पार्टिसिपल फॉर्म होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। Like for instance, do का थर्ड फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा do या does, उसका सेकंड पास्ट फॉर्म होगा did, एंड उसका पार्टिसिपल फॉर्म होगा done। So, जैसे कि अगर आया he did his breakfast and left for school, so it should be begin with having, so it should be having done his breakfast, comma, he left for school। तो हैविंग वाले सेंटेंसेस के लिए आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, तो फिर आप नहीं करके आओगे। इसमें अक्सर बच्चे गलती करके आ जाते हैं। मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल उठाए यहाँ पे बताने के लिए कि क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा थोड़ा सा। ही एट हिज ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू स्कूल, जैसे कि यहाँ पे है 8, सो यहाँ क्या हो जाएगा? हैविंग। नाउ ईट का 3 फॉर्म्स क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म इज ईट, सेकेंड फॉर्म इज एट, एंड पार्टिसिपल फॉर्म इज ईटन। सो इसीलिए हैविंग के साथ पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है। सो इधर बन जाएगा हैविंग ईटन हिज ब्रेकफास्ट कॉमा ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, फुल स्टॉप। हैविंग ईटन हिज ब्रेकफास्ट कॉमा ही वेंट टू स्कूल। अच्छा, इसमें भी आपको कॉमा लगा के ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन। he had hurt me and so did he apologize। मैंने कितना बार बच्चों को देखा है कि दे यूज हर्ट का प्रेजेंट फॉर्म होता है हर्ट, और बच्चे पास्ट फॉर्म में लिख के आ जाते हैं हर्टेड। दिस इज नॉट द केस, प्लीज डोंट डू सो। हर्ट का सेकेंड फॉर्म भी है हर्ट, एंड उसका पार्टिसिपल फॉर्म भी है हर्ट। ठीक है, दिस इज एन इरेग्युलर वर्ब जिसका पास्ट, पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट तीनों फॉर्म सेम है। सेम मिस्टेक होता है, मैंने देखा है कट के साथ। बच्चे कट के साथ कटेड लिख के आ जाते हैं। इट्स कट, कट एंड कट। पुट के साथ पुटेड लिख के आ जाते हैं। इट्स पुट, पुट एंड पुट। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप मिस्टेक करके आ जाएंगे। तो इसीलिए यहां क्या होगा? ही हैड हर्ट मी, सो हैविंग हर्ट मी, कॉमा, ही अपोलोजाइज्ड। क्योंकि डिड है, पास्ट टेंस है, इसीलिए अपोलोजाइज्ड हो जाएगा। हैविंग हर्ट मी, कॉमा, ही अपोलोजाइज्ड। ठीक है, एंड द लास्ट वन। He came to the market early and realized that the shops were closed. Now, इसमें भी बहुत मिस्टेक होता है। came है, came किसका पास्ट फॉर्म है? come का। So V1 is come, V2 past form is came, and participle is again come. इसका पार्टिसिपल भी come है। So ये भी आपका एक irregular verb है, इसीलिए क्या होगा? बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं? having came। No, it has to be having come, V3, having come to the market early, comma, he realized
that the shops were closed. ठीक है, this should be your answer. I hope I'm clear. चलिए, moving to the last two structures. Now sentences begin with little. So little के साथ हमें again helping verb का जरूरत होता है, जो कि does या did के फॉर्म में होना चाहिए, and then उसके बाद subject आता है. Now does किसके लिए लगाएंगे? does हम लोग लगाएंगे प्रेजेंट टेंस के लिए, दैट टू इफ वी हैव अ सिंगुलर वर्ब. अच्छा, मैं शायद यहां पे लिखना भूल गया, डू भी यूज हो सकता है अगर अगेन प्रेजेंट टेंस है बट इट इज अ प्लूरल वर्ब. एंड डिड कब यूज होगा? जब आप पास्ट टेंस का बात कर रहे हैं, सो तब डिड का इस्तेमाल करना है. ठीक है, सो आइए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं. He does not know that he is being betrayed. So क्या हो जाएगा? He does है, so it's a present tense. So इसका भी little के साथ does ही यूज होगा, and that तो he है, he के साथ does होता है, they होता तो do होता. ठीक है, so it should be little does he know that he is being betrayed. ठीक है, little does he know that he is being betrayed. and वही मान लीजिए ये he हटा के यहां मैं they कर देता तो फिर does नहीं होता, ये they do not हो जाता, तो फिर आपका आंसर बनता little do they know that they were being betrayed हो जाएगा. ठीक है, I hope this is clear. And the last structure is whenever they ask you begin a sentence with never, right? never. So आपने वो गेम खेला होगा never have I ever, उसी टाइप का स्ट्रक्चर है ये. ठीक है, सो मेक श्योर टू यूज हैज, हैव एंड हैड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, एंड देन यू यूज द सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली. एंड जैसा कि मैंने बताया कि हैविंग के साथ जैसे हम लोग V3 लगाते हैं, वैसे ही अगर हैज, हैव, हैड को यूज करते हैं तो किसी भी वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म को यूज किया जाता है उससे स्ट्रक्चर बनाने के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल, I have never seen a lion as ferocious as this. इसका आंसर होगा never. I have है, so never have I ever seen a lion as ferocious as this. ठीक है, He has never been through so much of trauma. So इसका हो जाएगा never. he है तो he के साथ has है, इसीलिए never has he ever been through so much of trauma. अब आप पूछेंगे भैया कि यहां पे V3 कौन सा है, तो देखिए has है, उसके साथ बिन लगाया है, हैज है, उसके साथ बिन लगाया है. बिन क्या है? इट्स अ थर्ड फॉर्म किसका? बीई का, राइट? बीई का प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इज, एम, आर. इसका पास्ट क्या होता है? वॉज, वर. एंड इसका पार्टिसिपल क्या होता है? बिन. इसीलिए दिस इज V3. ठीक है, जैसे सीन क्या है? थर्ड फॉर्म है. किसका थर्ड फॉर्म है? सी का. सी का क्या होता है? सी, saw and seen. ठीक है, सो याद रखिएगा कि हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं. एंड एक लास्ट सेंटेंस नीचे जो बच गया है, चलो उसको कंप्लीट करिए. दिस इज द बेस्ट चीज केक ही हैड एवर टेस्टेड. नेवर हैड ही टेस्टेड a better cheesecake than this. ठीक है, never had he tasted, क्योंकि he had था, so never had he tasted. Now tasted क्यों? tasted भी थर्ड फॉर्म है, इसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं, जहां पे टेस्ट का फर्स्ट फॉर्म इज टेस्ट, पास्ट फॉर्म इज tasted, एंड पार्टिसिपल भी tasted है.
सो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स जिसका पास्ट एंड पार्टिसिपल दोनों सेम होता है. ठीक है. I hope this was clear. I'll come up with one last video and give away your rules for the transformation, and I will wrap up this series. I hope you are liking my video, and if you are, then please do show some support by liking, subscribing, sharing it with your friends so that I can deliver more such quality content to you. All the very best for your examination. Take care. Bye bye.